ایران پر آج بھی شدید حملے کریں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا پاکستان کی درخواست پر ایران کو بریک دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہم ایران کے ساتھ ایک بامقصد معاہدہ چاہتے ہیں، ایران کو اب ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار، ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اصل تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ اور قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف، سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی، ٹیم ورک کے طور پر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں، دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ یقین ہے باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہوگا۔ ایران ہر جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے گفتگو۔ ایران پر امریکی جارحیت کی تفصیلات سے آگاہ کیا، کہا خطے کے ملک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، کسی بھی ملک کی تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو انہیں نشانہ بنائیں گے، اپنے دفاع کے لیے حملوں کی جگہ اور جارحیت کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں پر حملے کریں گے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی برقرار رکھنے کی ذمہ داری پوری کریں۔ مہاجر نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اس معاملے پر فیصلہ دیا ہے، کشمیر میں سستی بجلی اور آٹے پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے، کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ مہاجروں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے۔ کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی ہے، جہاں تمام لیڈرشپ نے مشترکہ فیصلہ کیا، تمام مشاورت کے بعد ہی آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد کی توثیق کی۔ قومی اقتصادی کونسل نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کمی پر اتفاق کر لیا۔ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے برقرار رہے گا۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 701 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 110 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 109 ارب روپے کم کر دیا گیا۔ صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں اب 2218 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے صوبوں نے وفاق کے ترقیاتی بجٹ پر اعتراض کیا۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 126 ارب روپے کم کر کے 1001 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ صوبوں کا کہنا ہے کہ وفاق ہم سے فنڈ مانگ رہا ہے اور اپنا ترقیاتی بجٹ بڑھا رہا ہے۔ صوبوں پر مالی بوجھ ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ کم کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے NFC ایوارڈ کے تحت صوبائی حصے میں کمی غیر آئینی ہوگی، جو کام براہ راست نہیں ہو سکتا بالواسطہ طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ KP عوام کے مسائل کا امین اور صوبائی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے میٹنگ اچھی بات ہے، ہم اپنے صوبے کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں، چاہتے ہیں اس جدوجہد میں مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ لڑا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے 180 دن میں NFC اپڈیٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا صوبے 180 دن کے اندر قبائلی اضلاع کے معاملے پر متفق ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا صوبے متفق نہ ہوئے تو اسمبلی صدارتی آرڈر کے لیے بھیجوں گا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے خد و حال سامنے آ گئے۔ نئی بجٹ دستاویز کے مطابق انفراسٹرکچر کے لیے 602 ارب، توانائی کے لیے 116 ارب،
NHA और मवासलात के लिए 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल 75 अरब 80 करोड़ और समाजी शोबे के लिए 180 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। मनसूबाबंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, कोयटा कराची N25 के लिए 100 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 26 अरब, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 25 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए रखे जाने की तैयारियां। विफाकी तालीम और हायर एजुकेशन का बजट 74 अरब 50 करोड़, विफाक का सेहत आमा के लिए तरक्याती बजट 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। आइंदा माली साल में अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। सालाना 1 करोड़ या इससे ज्यादा तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। इनकम टैक्स रिलीफ के लिए IMF से 3 तजावीज भी शेयर की गई। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 3%, 24 लाख आमदन पर 5%, सालाना 36 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 10% की जा सकती है। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालिफत कर दी। सेल्स टैक्स 1 के बजाय 25% करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौरे हुकूमत में की गई भर्तियां खिलाफ कानून करार दे दी। अदालत ने मुलाजिमीन की बरतरफी के लिए बनाया गया कानून आइन के मुताबिक करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देना होता है। ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती जो मुस्तकिल नौइयत का हो। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत के मुजरिमों रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुल रहमान भोला का नहीं। अगर MQM के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? MQM पर लगाए गए इल्जामात में से एक भी साबित नहीं हुआ। बल्दिया टाउन केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम कहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बेशतर इल्जामात लगाने वालों ने अदालतों और मीडिया में अपने दावे वापस लिए। मुखालिफिन ने MQM का तशख्खुस खराब करने के लिए हर दौर में इल्जामात लगाए। आज एक बार फिर अदालत से MQM का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मुस्तफा कमाल ने कहा, पहले दिन से इस बात के शवाहिद थे कि ये आग फैक्ट्री मालिकान की गलती से लगी। मैं ये कहता था कि ये आग MQM ने नहीं लगाई। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने कराची, MQM और शोहदा का मुकदमा जीता है। भारत के जौहरी हथियारों के जखीरे में तेजी से इजाफा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान भारत ने 10 नए एटमी वॉरहेड्स तैयार किए, जिससे उसका मजमूई एटमी जखीरा 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया। भारत ने एटमी मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखने वाली 2 नई आबदोजें अपने बहरी बेड़े में शामिल की हैं। भारत का एटमी जखीरा अब बरतानिया के बराबर पहुंच गया। इस अरसे में पाकिस्तान के जौहरी जखायर मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान का सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर वार। फितनाल खारिज के 26 दहशतगर्द हलाक, 4 मराकज़ तबाह। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितनाल खारिज के ठिकानों मनसूबा साजों को निशाना बनाया। तबाहशुदा अहदाफ में तरबियती मरकज, असलहा डिपो, महफूज पनागाहें शामिल हैं। अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात के साथ निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आतिशज़दगी, जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। DPO मरी मोहम्मद रजा के मुताबिक वैन पहले बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद फ्यूल लीक हुआ और आग भड़क उठी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो मुल्तान से मरी जा रहे थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत, वाक़े की वजूहात का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
जंग की मुतवक्किल तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती साबित नहीं हुई। DHQ इंतजामिया का कहना है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती या तशद्दुद के सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 17 साल की लड़की शुगर की मरीजा और 5 साल से इंसुलिन पर थी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए। झंग के निजी अस्पताल में मुल्जिमान लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद दौरान इलाज लड़की दम तोड़ गई। लड़की के वालिद का इल्जाम था कि बेटी को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की को अस्पताल छोड़कर जाने वाले 4 मुल्जिमान जेर हिरासत हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में पुलिस हतमी चालान पेश करने में ताहाल नाकाम। उबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया, 4 गवाह शामिल। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि उबूरी चालान की खामियां हतमी चालान में दूर कर दी जाएंगी। अनमोल पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए, 2 खवातीन भी शामिल। पुलिस ने 7 मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया। नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया फयाज, आकिब, हमजा, एजाज, जैद, साबिरा और ऐना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कराची में दुल्हन के हाथों दुल्हा और शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। लौरंगी में 9 बयाता दुल्हा हमजा की घर से फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा दुआ पुलिस कांस्टेबल हैं। मकतूल का वलीमा 18 जून को तय था। मुकदमे में दुआ और उसका साबिक शौहर नामजद। सिरजानी में 18 साल लड़की शौहर के तशद्दुद से दम तोड़ गई। मकतूला की वालदा के मुताबिक शहरियार बट ने जहेज न देने पर मिसबाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। मार्च में दोनों ने पसंद की शादी की थी। बाद में पता चला कि शहरियार की ये 4थी शादी है। कराची में NCCI की कार्रवाई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में छापा। गैर कानूनी कॉल सेंटर पकड़ लिया। बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स हैक करने में मुलव्विस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत ईंधन बचत किफायत शुमारी इक़दामात पर अमल दरामद कमेटी का इजलास। किफायत शुमारी इक़दामात की मुद्दत 13 जून से बढ़ाकर 30 जून तक करने की सिफारिश। करियाना और ग्रोसरी स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रखने का फैसला। इस्लामाबाद में मार्केटों की बंदिश के औकात में तब्दीली। बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। ग्रोसरी स्टोर्स और शादी हॉल्स को रात 10 बजे, फूड आउटलेट्स 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत। अस्पताल, फार्मेसीज, बेकरियां, तंदूर और दूध की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएम पंजाब QR पैनिक बटन की तनसीब जारी। CTO लाहौर ने रिक्शों में QR पैनिक बटन लगाए। CTO ने बताया बसों, वैगनों, रिक्शों और टैक्सियों में पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिर फौरी पुलिस और सेफ सिटी से राबता कर सकते हैं। मुसाफिर की लाइव लोकेशन, गाड़ी का डेटा फौरी तौर पर पुलिस को मौसूल हो जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। सिब्बी, दादो और जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस हुई। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, पारा 37 डिग्री लेकिन शिद्दत 49 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। पेशावर में दर्जा हरारत 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। PDM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं, गरज चमक और वक्फे से बारिश हो सकती है। तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। PCB ने एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में टीम की क़यादत साहबजादा फरहान करेंगे। अब्दुल समद नाइब कप्तान होंगे। मैचेस 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। आकिब जावेद, अली रजा, मुआज सदाकत और साद मसूद पहली बार पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने के मुंतजर हैं।